मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 1 में थ्योरम 1.3 और थ्योरम 1.4 के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। ओके, थ्योरम 1.3, लेट p be a prime number then p divides a square if p divides a square then p divides a where a is a पॉजिटिव इंटीजर। ये थ्योरम 1.3 है, इसका स्टेटमेंट हमें लर्न करना पड़ेगा और इसका यूज़ हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे। Theorem 1.4, prove that root 2 is irrational. Proof: let us assume that root 2 is rational. Root 2 is equal to a upon b, where a and b are co-prime. चूँकि रैशनल नंबर हमारा a upon b फॉर्म में होता है, इसलिए हमने रूट 2 को a upon b लिख दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b रूट 2 इज इक्वल टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, हैंस 2 डिवाइड्स a। ये इसमें थ्योरम 1.3 का यूज़ हुआ है। नाउ पुट a इज इक्वल टू 2c, जब 2 हमारा a को डिवाइड करेगा तो a हमारा 2c के इक्वल होगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड 2 डिवाइड्स b, देयरफॉर a एंड b हैव एट लीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b are co-prime, so our assumption is wrong, hence we conclude that root 2 is irrational. ओके, ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में पहुंचते हैं। एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। प्रूफ में लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। रूट 5 इज इक्वल टू a upon b, वेयर a and b are co-prime, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 5 is equal to a square upon b square, therefore b square is equal to a square upon 5, therefore 5 divides a square, hence 5 divides a. Now put a is equal to 5c, b square is equal to 5c square upon 5, b square is equal to 5c square, b square upon 5 is equal to c square, therefore 5 divides b square, hence 5 divides b. Therefore a and b have at least 5 as a common factor, but this contradicts the fact that a and b to 5c square upon 5, b square is equal to 5c square, b square upon 5 is equal to c square, therefore 5 divides b square, hence 5 divides b. Therefore a and b have at least 5 as a common factor, but this contradicts the fact that a and b are co-prime, so our assumption is wrong, hence we conclude that root 5 is irrational. Okay, next question, question number 2, prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. Let us assume 3 plus 2 root 5 is rational. 3 plus 2 root 5 is equal to a upon b, where a and b are co-prime. 2 root 5 is equal to a upon b minus 3. 2 root 5 is equal to a minus 3b upon b. Root 5 is equal to a minus 3b upon 2b. Root 5 is irrational and a minus 3b upon 2b is rational, so our assumption is wrong, hence 3 plus 2 root 5 is irrational. Question number third का first part, let 1 upon root 2 is rational. 1 upon root 2 is equal to a upon b, where a and b are co-prime. रेसिप्रोकल करेंगे तो root 2 is equal to b upon a. root 2 is rational if b upon a is rational, but root 2 is irrational, so our assumption is wrong, hence 1 upon root 2 is irrational. Okay, question number third का second part, let 7 root 5 is rational. 7 root 5 is equal to a upon b, where a and b are co-prime. 7 से डिवाइड कर देंगे तो रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन 7 भी हो जाएगा. a अपॉन 7 भी इज रैशनल, सो रूट 5 इज रैशनल, बट रूट 5 इज इररेशनल, सो अवर एज्यूम्शन इज रॉन्ग, देयरफॉर 7 रूट 5 इज इररेशनल. उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी और आप लोग रिफ्रेशर से भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे और मुझे फीडबैक देंगे कि आपसे क्वेश्चंस लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं. ओके, थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. फॉर क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स
Theorem 1.5, let x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form p upon q, where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 raised to n 5 raised to m, where n m are non-negative integers. Theorem 1.6, let x is equal to p upon q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 raised to n 5 raised to m, where n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates. Theorem 1.7, let x is equal to pq be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 raised to n 5 raised to m, where nm are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating. ओके, इन थ्योरम्स में क्या कहा गया है कि अगर रैशनल नंबर है तो q जो अगर आपका 2 रेज टू m 5 रेज टू n फॉर्म में होता है तो हमारा टर्मिनेट करता है, नहीं तो टर्मिनेट नहीं करता है. ओके, अब हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज 1.4 पर. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. Question number first, 13 upon 3125, 13 upon इसे हम 5 की पावर 5 लिख लेंगे, 13 upon 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0, since the denominator is of the form 2 raised to m 5 raised to n is equal to 0, m is equal to 5, therefore 13 upon 3125 हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. क्योंकि ये 2 की पावर n और 5 का पावर m फॉर्मेट बन गया, इसलिए टर्मिनेटिंग हो गया. क्वेश्चन नंबर सेकंड, 17 upon 8, 13 upon 2 की पावर 3, 17 upon 2 की पावर 3, 17 upon 2 की पावर 3 इंटू 5 पावर 0, सिंस द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to n 5 raised to m, n is equal to 3, m is equal to 0, therefore 17 upon 8 हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, नेक्स्ट इसे हम करेंगे फैक्टराइज, तो इसमें हमारा 7 टर्म आएगा, इसलिए टर्मिनेट नहीं करेगा. नेक्स्ट इसमें 2 की पावर 5 और इसमें 15 अपॉन 1600 वाले में जो है डिवाइड कर देंगे हम 5 से, तो 3 अपॉन 3 2 0 आ जाएगा. 3 अपॉन इसे हम 2 की पावर 6 इंटू 5 पावर 1 लिख लेंगे. ये हमारा जो है वो टर्मिनेटिंग हो जाए, क्योंकि ये 2 की पावर m और 5 पावर n फॉर्मेट में है. नेक्स्ट 29 अपॉन 343, 29 अपॉन 7 पावर 3, इसमें 2 की पावर n और 5 पावर n नहीं है, इसलिए ये हमारा टर्मिनेट नहीं होगा, ये हमारा रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. नेक्स्ट 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 पावर 2, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाए, क्योंकि 2 की पावर m 5 पावर n फॉर्मेट में है. नेक्स्ट 129 अपॉन 2 की पावर 2 5 पावर 7 7 पावर 5, इसमें 7 आ रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. 6 अपॉन 15, 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5 पावर 1, 2 की पावर 0, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा. नेक्स्ट ये भी हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा. और नेक्स्ट ये भी हमारा इसमें 7 का टर्म आ रहा है, सॉरी 5 का टर्म 3 का टर्म आ रहा है, 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड, write down the decimal expansion of the rational numbers in the question first which have denominating decimal expansion. जिसके टर्मिनेट हो रहे हैं वो हमें लिखना है. 13 upon 3125 फर्स्ट क्वेश्चन, इसे हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, 10 पावर हम कन्वर्ट करके हम सॉल्व कर लेंगे, और ये इस तरीके से क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे. ये सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं, देख लीजिएगा आप लोग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फॉलोइंग रियल नंबर्स. इसमें ये बताना है कौन सा हमारा टर्मिनेट कर रहा है कौन सा नहीं. फर्स्ट वाला जो है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे हम डिवाइड कर देंगे, पॉइंट लगा हुआ है, तो ये 2 की पावर 5 और 5 पावर 2 की पावर एंड 5 पावर m में बन जाएगा, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा. सेकंड वाला जो है हमारा गिवन डेसिमल एक्सपेंशन, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा. नेक्स्ट वाला जो है द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रैशनल है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर जो है वो आपका 2 की पावर 5 m और 5 पावर n फॉर्मेट में नहीं है. ओके, थैंक यू.